Hello students, this is Bhashwati teacher and welcome to my channel Learning English with Bhashwati teacher. Today we are going to do lesson number 1.2 from your 8th standard English textbook Dick Whittington and his cat. But we are not going to do the full lesson. We are going to do it only part wise. Okay. Dick Whittington and his cat, lesson number 1.2, and these are the world famous personalities. Can you name? First one is Dr. APJ Abdul Kalam. Second one is Abraham Lincoln. Third one is Charlie Chaplin. And fourth one is Kalpana Chawla. Now let us start the lesson Dick Whittington and his cat. And remember that in examination, passage wise questions are asked. So whatever one or two passage we will do every day, based on that questions answers will be given. You are not supposed to write down the passage, but you are supposed to write down the questions, answers and the grammar. Okay. There was once a poor boy called Dick Whittington. He who lived in a small village in the south of England. He had no proper home, for both his parents had died and he was unkindly treated by many of the villagers. One day, Dick overheard someone say that the streets of London were paved with gold, and he decided that he would go there at once and pick his fortune up in gold pieces from the streets, for he thought people might treat him more kindly if he were rich. So young Dick set out to walk to London. He had not gone far when a man in a cart stopped and asked him if he was running away from home. I have no home, Dick answered. I am on my way to London. Okay, so I will try to explain this lesson by taking a bit liberty in Hindi. एक गरीब लड़का था, उसका नाम था डिक वाइटिंगटन. वो कहाँ रहता था? एक छोटे से गांव में रहता था, साउथ ऑफ इंग्लैंड में. उसका कोई प्रॉपर घर नहीं था क्योंकि उसके दोनों पेरेंट्स की डेथ हो चुकी थी और उसको बाकी के विलेजर्स बहुत ही अनकाइंडली ट्रीट करते थे, अच्छे से प्यार से ट्रीट नहीं करते थे. एक दिन डिक को कहीं से सुनाई दिया कि लंदन के जो रास्ते होते हैं, स्ट्रीट्स होते हैं, वहाँ पे गोल्ड बिखरा पड़ा होता है. I mean, okay, he did not understand the meaning of the sentence. So he thought कि if I go to London मैं सारा गोल्ड उठा लूँगा वहाँ से. तो फिर वो सोचता है कि चलो एक बार मैं लंदन जाता हूँ और वहाँ पे जितना भी रास्ते के ऊपर खजाना गिरा हुआ है, चलो मैं उठा लूँगा. देन ही थॉट कि फिर शायद अगर वो रिच हो जाएगा कि लोग उसको बहुत अच्छे से ट्रीट करेंगे. तो फिर वो जो उसके पास तो पैसे भी नहीं थे, तो फिर वो पैदल ही लंदन के लिए निकल पड़ा. ज़्यादा दूर नहीं गया था जब एक आदमी कार्ट लेके, बैलगाड़ी या समथिंग, घोड़ा गाड़ी समथिंग लेकर वो जा रहा था. और वो रुकता है और पूछता है कि क्या तुम घर से भाग रहे हो? तो वो बोलता है कि आई हैव नो होम, मेरा कोई घर ही नहीं है. आई एम ऑन माई वे टू लंदन, मैं लंदन जा रहा हूँ. टू फाइंड माई फॉर्च्यून, खजाना ढूंढने के लिए. I am going to London myself, said the carter. Jump up here beside me and we will journey together. They arrived in London just before nightfall and the carter left Dick and made his way to an inn. Poor Dick stood alone and looked around him in dismay. Where was all that fine gold? All he could see were dirty streets and the lots of unfriendly people. He had nowhere to sleep and in the end he spent the night in the corner of an alley where he hoped he would come to no harm. The next morning, Dick woke up cold, miserable, and very hungry. He wandered around begging for food, but again and again people shouted at him, "Go away, you lazy fellow! Be off with you!" and aimed angry blows at his head. At last, he collapsed. While going to London, then रास्ते में उसको एक कार्टर मिलता है और कार्टर बोलता है कि मैं भी लंदन जा रहा हूँ, चलो आकर बैठो मेरे साथ, हम लोग साथ में जर्नी करेंगे. जैसे ही वो लोग लंदन पहुंचते हैं रात होने के पहले, तो फिर वो कार्टर जो है डिक को छोड़ देता है और फिर वो एक होटल में, इन, INN, इन का मतलब होता है होटल में, वो वहाँ चला जाता है. अब पुअर डिक बेचारा वो अकेला खड़ा रहता है एंड बहुत आसपास ही लुक्स अराउंड इन डिसमे, मतलब कि ही इज़ अनहैप्पी एंड वेरी सैड. अब वो सोचता है कि अरे लंदन तो पहुँच गया, लेकिन वेयर इज़ द गोल्ड? एंड वहाँ पे उसको लंदन में क्या दिखाई दिया? सिर्फ डर्टी स्ट्रीट्स और कितने अनफ्रेंडली पीपल, बहुत गंदे तरीके से ट्रीट करने वाले पीपल. देन ही हैड नो प्लेस जहाँ पे वो टू स्लीप, मतलब कि वो सोने के लिए भी उसके पास जगह नहीं थी.
एंड इन द एंड फिर वो एक रात बिताता है एक एली, मतलब एक कॉर्नर, एक गली, छोटे से गली के कॉर्नर में, जहाँ पे उसको लगा नोबडी विल डू एनी हार्म टू हिम। फिर अगले दिन सुबह जब डिक उठा तो बहुत ठंडी लग रही थी उसको, बहुत उसको मिजरेबल लग रहा था, बिकॉज ही वॉज वेरी हंग्री, कुछ नहीं खाया था उसने। फिर वो रास्ते दर दर भटकता है खाना भीख मांगते हुए, लेकिन हमेशा लोग उसके ऊपर चिल्लाते हैं, बोलते हैं कि गो अवे यू लेज़ी फेलो, चलो बी ऑफ विथ यू, मतलब निकल जाओ यहाँ से अभी के अभी, और उसके सर के ऊपर ज़ोर ज़ोर से मारते हैं। एट लास्ट ही कोलैप्स्ड इन द स्ट्रीट एंड ले देयर टू वीक टू लुक फर्दर फॉर फूड। फिर वो रास्ते पे चक्कर आके गिर जाता है और रास्ते पे पड़ा रहता है, एंड ही वॉज टू वीक, इतना दुर्बल हो जाता है कि अब वो फूड भीख मांगने के भी उसको ताकत नहीं होती। By chance, Dick had fallen in front of a house belonging to a rich merchant called Mr. Fitzwarren. The cook was trying to drive Dick away. When Mr. Fitzwarren returned home from inspecting his ships, he stopped and said to Dick, "Why don't you work if you need food?" "I would work," said Dick, but I know nobody who will give me anything to do." "Take him into the kitchen," Mr. Fitzwarren ordered the cook. "Feed him first and then find some work for him." So Dick was given a home and a living. He had a small corner of the attic to sleep in, and his job was to help the cook with all the pots and pans in the kitchen. ठीक है, अब डिक चक्कर आकर गिरा बाय चांस किसके घर के सामने, एक रिच मर्चेंट के घर के सामने, जिसका नाम था मिस्टर फिट्जवारन। और उनका जो खाना बनाने वाला जो आदमी था, जो नौकर था उनका, वो डिक को निकालने की कोशिश ही कर रहा था, हकालने की कोशिश ही कर रहा था। बट देन मिस्टर फिट्जवारन घर वापस आ जाते हैं अपने शिप्स का, मतलब वो एक शिपिंग कंपनी के मालिक थे, अपने शिप्स का इंस्पेक्शन करके। और वो बोलते हैं कि अरे, अगर तुम्हें खाने की ज़रूरत है, फूड की ज़रूरत है, तो तुम काम क्यों नहीं करते। तो डिक बोलता है कि मैं काम करूँगा, लेकिन कोई मुझे कोई काम देता भी नहीं। देन मिस्टर फिट्जवारन अपने कुक को बोलता है कि टेक हिम इनटू द किचन, कि इसको किचन में लेकर जाओ और इसको कोई काम दो। फीड हिम फर्स्ट, पहले इसको खाना खिलाओ, और देन उसको कोई ढूंढो, कोई काम दो उसको करने के लिए। देन सो डिक वॉज गिवन अ होम एंड अ लिविंग। इस तरीके से डिक को एक रहने के लिए घर मिला और उसको कमाने के लिए पैसे मिले। देन ही हैड अ स्मॉल कॉर्नर ऑफ द एटिक टू स्लीप इन एंड हिज जॉब वॉज टू हेल्प। तो उसको रहने के लिए एक एटिक, मतलब वो जो स्टोर हाउस होता है, उसका एक छोटा सा कॉर्नर मिला, एंड उसका काम था कि कुक को हेल्प करना, सारे पॉट्स और पैन्स, जितने भी बर्तन जो भी है किचन में, हेल्प करना टू द कुक। Dick's life should have been much better than before, but he still had two difficulties to face. The first was that the attic he slept in was overrun by rats and mice. At night, they scampered all over him and kept him awake. After a time, he solved his problem by saving the few pennies he was paid and buying himself a cat. In no time at all, the cat chased away all the rats and mice, and Dick was able to sleep peacefully. The other difficulty, which was not so easy to overcome, was the cook's bad temper. She shouted and screamed all day, and so would scold Dick and hit him with a wooden spoon, even when he was working as hard as he could. ठीक है, अब नौकरी मिल गई, घर मिल गया, तो डिक का जीवन तो पहले से अच्छा होना चाहिए था, लेकिन उसके जीवन में अभी भी दो डिफ़िकल्टीज़ थी। पहला तो था कि जहाँ पे वो एटिक स्टोर रूम में जहाँ पे वो सोता था, वहाँ पे बहुत चूहे थे, एंड रात भर वो चूहे उसके बॉडी के ऊपर से इधर से उधर कूदते थे, स्कैम्पर्ड, ओके, रनिंग हियर एंड देयर, एंड दे केप्ट हिम अवेक, और उसको मतलब सोने नहीं देते थे। देन आफ्टर अ टाइम फिर उसने अपना ये प्रॉब्लम सॉल्व किया। जो उसने थोड़े थोड़े पैसे बचाए थे, उसने एक कैट खरीद लिया, और कुछ ही समय में वो जो कैट थी, उसने सारे चूहे खाकर इधर मार दिए या भगा दिए, और डिक आराम से अब सो सकता था। दूसरी डिफ़िकल्टी थी, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट था, जो कुक लेडी थी, बहुत ही उसका बैड टेम्पर्ड लेडी थी। शी यूज्ड टू, वो सिर्फ चिल्लाती रहती थी, शी यूज्ड टू शाउट एंड स्क्रीम ऑल डे, एंड शी वुड स्कोल्ड डिक एंड हिट विथ अ वुडन स्पून, लकड़ी के स्पून से उसको मारती रहती थी फॉर नो रीज़न। तो देन जितना भी वो मेहनत करे, बट स्टिल शी यूज्ड टू शाउट ऑन हिम एंड शी यूज्ड टू beat him with that wooden spoon. I think I will teach you only this much portion today. Based on these passages, I will give you the question answers.
you are supposed to write down the question answers based on the passage, but you are not supposed to write down the passage. Nobody will ask me the silly questions.